حضرت زینب عمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تے میرا دوست دونوں چلتے چلتے اسی غوث سمدانی کی محفل کے اندر جا پہنچے. اگے کلمہ لگا ہے. حضرت غوث پاک اپنے نانے کے سادات کو لوگوں کو مستفید فرما رہے ہیں. حضرت زین الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی بھی جا کے کہہ گئے آپ نے گل فرما رہے سی نا اس گل کو آپ نے اتنے روکیا تے آپ نے فرمایا حجاز مقدس وچوں دو بندے آئے ہیں انہاں دے کول ایک ہی کمان سی او انہاں بغداد دے وچ بیچیے ویچ کے انہیں چاول لے نے چاول لے کے پکائے نے پکان تو بعد انہوں نے کھادا ہے نہ تو میں رجے نے نہ تو انہوں سواد آیا ہے. حضرت زین الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حیران ہو گئے کہ اسی قریب بھی آئی نہیں گئے اسی تے مجمع دے پیچھے بیٹھے ہیں اور اسی آئے ہیں حجاز مقدس وچوں واقعی گل ٹھیک ہے کمال نہیں سارے کول ایسی سب بیچی کے بھی گل ٹھیک ہے اگوں وہ پیسے دے چاول لے کے خرید کے پکا کے کھاتے یہ بھی گل ٹھیک ہے. غوث پاک کو پتہ لگا مولانا رومی فرماتے ہیں تو چلا ہو گیا غوث کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے کہ بندگان خاص اللہ کو غیوب وحضروہم ہم جواسی سلطرو فرمایا اللہ والے کہنے نہیں کہ دلہ میں جسوس ہوتے ہیں. نبی پاک کی حدیث سے آپ نے فرمایا علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان پر کنٹرول کر کے بیٹھو اور جب کسی فقیر کی کسی ولی اللہ کی محفل میں جا کے بیٹھو تو اپنے دل میں بھی کوئی خیال مت لانا انہیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. جناب حضرت زین الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما رہے ہیں حضرت جناب غوث پاک نے گل کی تھی جو اسی معاملہ کر کے آئے سی کمان بھی بیچی چاول بھی لے کے کھاتے بھی پکائے بھی لیکن شکم صاحب نہ ہوئے مزہ بھی نہ آیا. حضرت جناب غوث پاک نے اپنی محفل اختتام پذیر کی تھی. اختتام پذیر کرنے تو بعد حضرت جناب غوث پاک نے فرمایا دسترخوان لاؤ. زین الدین عمری فرماتے ہیں دسترخوان لگ گیا. جس نے دسترخوان لگ گیا تے میرے نال جڑا میرا دوست بیٹھا سی میں نے پوچھا یار کی کھانا پسند کرنا ہے تیرا کی دل کرتا ہے. وہ کہنے لگا میرا دل کرتا ہے میٹھا حلوا ہوے. انہیں پوچھا تیرا کی دل کرتا ہے انہیں کہا میرا دل بھی شہد کھان واسطے ملے. حضرت زین الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی دل وچ گل زبان تے نہیں ایک دل کو پوچھنے پئے ایک دسترخوان تے حضرت جناب غوث سمدانی شہباز علامہ خانی نے اپنے غلام خاص نو آواز دی فرمایا دسترخوان تے حلوا بھی آوے شہد بھی آوے شہد بھی لے کے آؤ تے حلوا بھی لے کے آؤ. حضرت زین الدین فرماتے ہیں اسی حیران ہو گئے جس لیے تو میں کام بھی غوث نو پتہ ہے ایتھے دل دیاں گلاں بھی غوث جاندا ہے. حضرت جناب غوث سمدانی شہباز علامہ خانی دی سارو علم تک میں کروان جاواں کتھوں تک تیرا مرتبہ غوث اعظم کتھوں تک تیرا مرتبہ غوث اعظم یا جانے نبی یا خدا غوث اعظم نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھتے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھدے. اسے چہرے دا روا نہیں شکلاں دا روا نہیں اللہ والا جدوں ویکھدا ہے وہ دل ویکھدا ہے. بلال حبشی موٹے اور سن پھنا نک سی رنگ دے کالے سی صدیق اکبر نے خرید کے پیش کیتا امام الانبیاء دی بارگاہ وچ بلال ویکھن نوں رنگ دا کالا سی لیکن دل دا نور والا نور سی. پھر یا بول پیا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر صدیق اکبر کو آپ نے فرمایا صدیق اکبر کلا غریب کے لے آیا ہے میرا بھی پتی دے حساب وچ رکھ لے آؤ. عرض کی یا رسول اللہ سی دو بھی تواڈے گھر دے غلام ہاں بلال بھی تواڈے گھر دا غلام ہے میں بھی تواڈے دادا نوکر. ساڈیاں کوئی دولت وکھریاں نہیں ساڈے پیسے وکھرے نہیں نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ اسی تے کھانے آ یار وہ خدا دے یار دا صدقہ. اسی تے دعوی نہیں کیتا بھی مال ساڈا ہے اسی تے دعوی نہیں کیتا ہے جان ساڈی ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم. قرآن کریم کے اندر پہ کائنات نے فرمایا او جہان والے سن لو نبی دے غلاموں سن لو
जाते हैं उससे शक्लां वेखियां जांदियां नहीं। हज़रत मुहम्मद बिन खज़र रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मेरे वालिद हज़रत शेख खज़र ने मैनू एक वाक़या बयान किया। मैं हज़रत जनाबे गौसे आलम की महफिल दे विच बैठा, हज़रत जनाबे गौसे आलम की महफिल चल रही है तो मेरे दिल में ख्याल आया काश इत्थे बैठिया मैनू हज़रत इमाम रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हो जाए। महफिल जनाबे गौसे समदानी दी है, महफिल हज़रत जनाबे कुतुब रब्बानी दी लगी हुई है। हज़रत जनाबे शेख खज़र फरमाते हैं मेरा दिल कीता इत्थे बैठिया मैनू हज़रत अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हो जाए। हज़रत गौसे पाक ने उधर में क्या फरमाया, हुणे हो जाएगी, हुणे हो जाएगी। आपने इनका न्यास नहीं अपनी चुकी आपने फरमाया कि हज़रत जनाबे खज़र फरमाते हैं मैं में देखिया मैनू हज़रत अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह नजर आए, नूरानी चेहरा नजर आया हज़रत अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह दा। हज़रत जनाबे खज़र रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं हज़रत अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया एडे शहंशाह दे कोल बैठ के सरदार औलिया दे कोल बैठ के फखरे औलिया दे कोल बैठ के इमाम औलिया दे कोल बैठ के गौसुल बड़ा दे कोल बैठ के मेरे वर्गे बंदियां नूं वेखण दी लोड़ ही कोई नहीं। असीं ते खुद इन्हां दी रह जावां, असीं ते खुद इन्हां दे नौकर आं, इन्हां कोल बैठ के मेरे वेखण दी की लोड़ है। ये नहीं गल कि हज़रत रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह आसमीन दे विचों गायब हो गए। हज़रत खज़र फरमाते हैं मैं चंद दिन हज़रत गौसे आलम की महफिल दे अंदर या कमाल लोग सजणा गौसे समदानी नूं वेखिया होएगा। अज 1400 साल बाद यारियां दवान वाले मुहब्बत दे प्यार दा हल कर दिंदे ने, लेकिन वो लोग जिन्हां गौसे आलम नूं बानफ़से नफीस वेखिया होएगा उन्हां दी किस्मत दा क्या आलम होएगा। हज़रत खज़र फरमाते हैं हज़रत जनाबे गौसे समदानी दी बारगाह दे विचों हज़रत अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह आसमीन दे विचों गायब हो गए। उन्हां फरमाया सी कि आप ही इन्हां दी राया वा एडे वड्डे शहंशाह दे कोल बैठ के एडे वड्डे वलियां दे ताजदार दे कोल बैठ के एडे वड्डे जिहदी मौत तो बगैर वली ना होवे ओदे कोल बैठ के साडियां शक्लां वेखणियां चाहते हो। हज़रत खज़र फरमाते हैं मैं चंद दिन आप दी महफिल दे अंदर रह के इजाजत मंगी और वो इजाजत होवे मैं जावां। हज़रत जनाबे गौसे पाक ने इजाजत दी थी। हज़रत खज़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं चलिया चलदियां चलदियां दिल दे विच आया आसमीन दे विच अहमद रफ़ाई नूं वेखिया सी हुण जाके शक्लों वेखां जंगा आपकी शक्ल भी बानफ़से नफीस वेखदा जावां। हज़रत शेख खज़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं चलदा चलदा अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह दे घरां विच पहुंचिया। जिसले पहुंचिया ते जाके वेखिया कोई नक है कोई अखां ने कोई चेहरा है कोई अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने। आप फरमाते हैं मैं करीब गया, जिसले मैं करीब गया उन्हां मैनूं मुखातब कीता ते मैनूं मुखातब करके कहण लगे ऐ खज़र ओ पहली मुलाकात तैनूं काफी नहीं सी हुण फेर वेखण आ गए। उत्थे जिहड़ा आसमीन दे विच मैनूं वेखी ओ मुलाकात काफी नहीं सी हुण इत्थे वेखण वास्ते आ गए। आप फरमाते हैं मैं हैरान हो गया उत्थे भी ज्ञान देण दी मैं भी दसी इत्थे बेदियां आपने फरमाया सी ते इधर पहुंचे थे ये को ना मुखड़े दा ना मुखड़े दा दिल वेखदे अल्लाह बारे जे वेखण दे दिल वेखदे हज़रत जनाबे गौसे समदानी साहब दा मकान दी अज़मत और शान तो मैं कुर्बान जावां। हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह आप भी शान और अज़मत तो मैं कुर्बान जावां बड़े बड़े आशिक़ रसूल गुज़रे। आप फरमाते हैं एक मुरीद गौसे आलम दी बारगाह दे अंदर रहने वाला आप जुमे दी नमाज वास्ते अपने आस्थाने तो चले अपने जामिया वाल अपनी मस्जिद वाल जिसले चले ते मैं नाल जाना पिया। चलदियां चलदियां वेखिया इंज बंदा लंघ जांदा सलाम कोई नहीं, इंज बंदा लंघ जांदा सलाम कोई नहीं, ना कोई तवज्जो करदा गौसे आलम वाल ना कोई सलाम अलैकुम बुलांदा है। हालांकि पहले अंदाज ही हुंदा सी घर दे विचों ले के मस्जिद तक पहुंचना मुश्किल हो जाता सी। पहुंचते जुमे का टाइम निकलने वाला हो जाता सी। हज़रत जनाबे गौसे समदानी भी जा रहे हैं मैं भी नाल जा रहा वेखदे कि वेखिया इधरों बंदे लंघ जाते हैं उधरों लंघ जाते हैं। अल्लाह चाहे अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब कोई भी होवे हो चाहे तो किसी को नजर आवे चाहे तो किसी को नजर न आवे। हज़रत जनाबे नबी करीम दे सिद्दीक़ अकबर को मैं खाने का बेले दे बैठे ने उम्मे जमीन ने डांग मोढ़े ते रखी हुई है ते डांग मोढ़े ते रख के नाल पानी वाली है। फिर मैं देखा मोहम्मद नो एक नवे कलमे दा ऐलान करदा नवा दीन लेके आया मैं लत्तां तोड़ दियां
दस मुहम्मद किथे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दस मुहम्मद मुस्तफा किथे नहीं। हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नजर नजर में वो जलवा कर वही नूर आंख का नूर है, जो तेरी समझ में न आ सके तो तेरी नजर का कसूर है। वो जावे कमली वाला किसे नजर आवे ना आवे, ए महबूब गौसे समदानी शहबाज़े बाबकानी हुआ महबूबी, हुआ महबूब हबीबी। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा भी महबूब है, मेरे हबीब का भी महबूब है। और नबी नजर आवे ना आवे, गौसे समदानी किसे नजर आवे ना आवे, हज़रत जनाब गौसे समदानी ताला ने ओ मुरीद कहने मैं नाल जाए कोई सलाम पर तवज्जो नहीं देता। हज़रत जनाब गौसे समदानी ने ओदे दिल दी कैफियत नूं वेखिया, ओदे दिल दी कैफियत नूं वेखिया वे कि मुस्कुरा पे ओ मुरीद कहंदा मैं वेखिया यकदम ओ जिहड़ा जम्मे नफीर लंघ गया सी लोग वो एक किसान जिहड़े अगों आ रहे सी वो वे कोल गुस्सणियों दुख के बड़ा बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया, सलाम दुआ लैण वाला, सलाम अकीदत पेश करने वाला। कहने लगा मैं इन्हां को वेखिया मजमा कि मैं उन्हां दे विचों दूर होंदा होंदा दरमियान विच मजमा आ गया, गौसिया मैं तो दूर हो गया, मैं उन्हां तो दूर हो गया। इन्हें लोग इकट्ठे हुए हज़रत जनाब गौसे समदानी को सलाम करने वाले, अकीदत पेश करने वाले, आपकी बारगाह के अंदर कोई हाथ चूम दे, कोई आपके जनाब जुबे नूं चूम दे, कोई आपके हत्थां नूं चूम दे, कोई आपके जनाब जुबे नूं चूम के निसार जांदा है पिया। ओ मुरीद कहंदा मैं वेखिया मैं हज़रत जनाब गौसे आलम तो दूर हो गया, उन्हां लोकां दी वजह तो दरमियान के अंदर मजमा हायल हो गया। मैं दिल दे अंदर सोचिया काश ये ना सोचदा है बंदे ना आउंदे, जिवें मैं कल्ला गौस नाल जांदा सा पिया इवें ही रहिंदा। ये सोचा कि मैं जिवें नाल जांदा पिया गौसे आलम दे नाल मिल के मैं इसे पहल गई मजमे दा मैं सोचा मजमा सारा इकट्ठा हो गया। मैं हज़रत जनाब गौसे समदानी तो दूर हो गया। मैं कुर्बान जावा हज़रत गौसे समदानी ने ये कैफियत देखी कि आपने फरमाया वो चलिया तेनों पता ही कोई नहीं, कायनात मेरी मुट्ठी दे विच बंद है। नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमान कहर दलत अला हुक्म इत्तिसाली। आपने फरमाया कि बगदाद की दुनिया है पूरी कायनात में अपनी तली दे उत्ते जिवें राई दा दाना रवे ना गया। फरमाया सारी कायनात मेरी मुट्ठी दे विच बंद है। मैं दिल करे इन्हां नूं परां कर दियां, दिल करे ते मैं अपनी इन्हां नूं करीब कर दियां। किथों तक तेरा मर्तबा से आज़म, किथों तक तेरा मर्तबा आज़म या जाने नबी या खुदा गौसे आज़म या जाने सनान नाम का एक पादरी ईसाई सी कि उन्हें इस्लाम की हकानियत देखी, ओदा दिल कीता मैं इस्लाम कबूल करना, लेकिन ओदे दिल दे विच ख्याल सी मैं पादरियां ते ईसाइयां दे विचों वड्डे मकाम वाला ते मैं ओदे हत्थे इस्लाम कबूल करा जेड़ा मुसलमानां विचों भी मकाम दा वड्डा होवे। हुसैन दे अंदर सोई दा लम्हा पै गया, ख्वाब के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गया। आपने फरमाया कि सोच में पिया ने क्या जरूर सोचता है पिया इमाम अल्लाह का कलमा पढ़ के ईमानदार हो जा, कलमा पढ़ लवा। सोचता है पिया कि कोई बड़ी हस्ती होवे, ऊंचा बंदा होवे, ऊंचे कद वाला होवे, ऊंचे मकाम वाला होवे, ऊंची हस्ती वाला होवे। मैं सारी जिंदगी ना ईसाइयां नूं तबलीग कीती, इन्हां दा आलम सा, मेरा मकाम इन्हां तो ऊंचा सी, कलमा भी मैं ओदे कोलों पढ़ा जिहड़ा सारियां तो ऊंचा होवे। अगर जनाब ईसा को अल्लाह करे मैं दुआ ने फरमाया ओ ऊंचा ना बने कि फिर सीधा बोला चला जा। जिन्हां दी तारीफां ईसा अल्लाह करे, जिस अल्लाह वाले दी, अल्लाह दे प्यारे दी, अल्लाह दे महबूब की तारीफ हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कलमा पढ़ना चाहे कि ऊंची हस्ती वाले बंदे को कलमा पढ़ना चाहे तो फिर चल सीधा उठ चल बगदाद। बगदाद के अंदर पीरों का पीर है, पीरों का
बन, आशिका को बड़े धक्के लगते थे, मशहूक बन। अगों भी गौस सी हजरत गौसिया ने गल की, अम्मा सानू अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा ते राज़ी रहना चाहिए। वो आशिकी देवे, वो मशहूकी देवे, वो जो भी रज़ा होवे, मैं वो रज़ा दे तेरा दिया। मां भी फिर गौसिया ने सी आपने फरमाया, अजब नहीं है मेरे बेटे, अल्लाह तेन मशहूकी भी अदा करे ते आशिकी भी अदा करे ते मशहूकी भी दे देवे। हज़रत जनाब गौसे समझानी फरमाते ने, इन्हीं गल मां दे मुंह दे विचों निकलदी ते सी आदत दे मैं दुआ बात होंदी है। गुरु कादर असन तेनू अपनी आशिकी भी अता फरमाई, असन तेनू मशहूकी भी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अपना आशिक भी बनाया ते अपना मशहूक भी बनाया। जब शान ओ तेरी आगों से जली है, अजब शान तेरी आगों से जली अपनी गौर के अंदर बिठाया, फरमाया मेरे लत्ते जिगर ए खुतबियत दी जुब्बा ये मैं तेनू अता करना, ये अबदालां ते खुतबां ते वलियां ते मैं तेनू सरदारी अता करना वा। सुभान अल्लाह। हज़रत जनाब गौसे आज़म फरमाते ने, मैं किसी पीर को जुब्बा नहीं लिया, मैं जुब्बा इमाम अल-अंबिया ने डायरेक्ट अपना अता फरमाया है। हज़रत जनाब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, इमाम अल-अंबिया उधर सारे नबियों का फखर है, इधर सारे वलियों का फखर है। इन दोनों की मुलाकात का मंजर वो कैसा समा होगा, वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी जब पहली नजरियों
ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते सी उन्हां दे फैज़ नाल तुहाडे सारे ईसाई उम्मतियां विचों कोई ऐसा है जिहड़ा मुर्दा जिंदा कर दे नबियां दी गल साडा थले आ थले वाली सीट दी आगे गल नबी ईसा अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत दे दे रखण वाले किसी ईसाई ने किसी पादरी ने मुर्दा जिंदा कीता होवे उन्हें कह जनाब मकाम खास सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम दे कोल सी आपने फरमाया मैं अपने नबी दा निकला जा खादम हां सुभान अल्लाह छोटा जिहा गुलामां दे विचों एक गुलाम हां ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा कीते उन्हां ने किसी पादरी उम्मती ने मुर्दा जिंदे नहीं कीते आ मैं नबी दा गुलाम हां जेड़ी जेड़ी कबर दे रख मैं मुर्दा जिंदा कर देना सुभान अल्लाह ओ ना जल में चलते चले कब्रिस्तान दे अंदर दसाए वे ओ निका के बड़ी पुरानी कबर दे ऊते हाथ रखया जिसने हाथ रखया ते आपने फरमाया जानना कितना पुराना मुर्दा है ओ निका नहीं फरमाया कि 100 साल हो गया बहुत होया 100 साल पुराना मुर्दा ही ये सारी जिंदगी सरंगी बजांदा रहा है ये आंखें ते सरंगी समेत उठे सुभान अल्लाह ये आंखें ते साल बजांदा ही उठे ये आंखें ते कल्ला ही उठे हो गया लगा ये साल बजांदा और सकता है होवे बजांदा ही उठे हजरत जनाब गौसे आजम की दौर वैदा ने का आपने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की कहने सी ओ कह लगा उठाने लगे मुर्दे नु कहने सी कौम के इज़्निल्लाह ओ अल्लाह दे हुक्म नाल हजरत जनाब गौसे पाक ने फरमाया कि नबियां दा काम है असि नबियां दे गुलाम आपने छुटा मारिया कब्र नु फरमाया कौम के इज़्नी सुभान अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौम के इज़्निल्लाह कह के उठाते सी मैं कहना कुछ मेरे हुक्म नाल कहने लगे जी बड़ी बड़ी गल है आपने फरमाया वो बड़े बड़े काम नाल दसी देने के छोटे छोटे काम ते सी नबी दे गुलाम ही कर लेने हैं सुभान अल्लाह मोरे ने जान ठोकर मारी कबर दे जो मोरे ने कबर फाड़ी निकलिया बाहर उसे तरह संगियों दे कोले दे गाना बजांदा ओ नबिया दे सरे उठे ते पादरी का सबिया इते कार पता ना आंदे पर फटे ते अपने बाबे बाबा होवे ते जान होवे ते लात पा ला देवे ते गड़वे छड़ के पतीले छड़ के सारा घारी बाहर निकल जाना भी तो फिर भी वो इस तरह दिन कोल बैठा सी गल्ला बात करदा सी उठ पिया ते खैर हो गई पुछो भी क्यों उठ पिया की बने सी तेरे नाल वो बजाय इसके कि उसे फोन किया जाए या उन्होंने पूछा जाए कि आप ही मुर्गी लाया मुर्दे तो इन्हें सी परेशान ने लेकिन वो बाकी जरा से दस पे आपने फरमाया ज्यादा कितने तू आए से भाई ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा कीते ने मैं तो नबी दा गुलाम हां इधर आ रहे मैं तेरा मुर्दा जिंदा करके दिखाना ए होया मेरे सामने मुर्दा ही उठा बाहर आया उन्हें बुलंद आवाज में पूछा तो को जहान जरा कटाया मैंने तो सो क़यामत करीब आ गई है हजरत जनाब गौसे पाक ने फरमाया क़यामत करीब नहीं आ गई ना क़यामत का मौसम आ गए ए अल्लाह दे नबी दे महबूब गुलाम दी करामत आ गई है सुभान अल्लाह अजब शान तेरी या गौसे जली है अजब शान गौसे जली है मेहरबान तुझे पर नबी और जली है मेहरबान तुझे पर नबी और जली है और वक्त दे दामन ये इजाजत नहीं हजरत गौसे आजम ने जरा उसे मुनाज़रा कीता और उस गल दी गल कीती इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में करांगे हजरत जनाब गौसे खुदा ने की फरमाया उस पादरी ने आपने कोल की सुनिया हजरत जनाब गौसे आजम दी शान और मतो मैं कुर्बान जावा तमाम वलियों दे उते रब कायनात ने गौसे खुदा ने सरदारी अता फरमाई आपने फरमाया मेरा हुक्म कायनात के मशरक मगरब शुमाल जनूब के अंदर चलता है जिथे भी कोई मेरा मुरीद मैंने पुकारे मैं उठे पहुंचना वा जिथे मेरा मलंग मेरा मुरीद होवे मैंने पुकारे मैं उठे ओदी पुकार दे उत्ते ओदी गल दे उत्ते ओदी आवाज दे उत्ते ओदी फरियाद दे उत्ते पहुंचना वा गौसे आजम मतलब फरियाद रस मदद नु पहुंचण वाला हजरत जनाब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रब कायनात ने मर्तबा वलियां दे विचों अता कीता तमाम वली कायनात दे अंदर ओनी देर तक वली वली हो ही नहीं सकदा जिन्नी देर तक गौसे आजम अपनी मोहर न लावन इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर बंदा आउंदा जेड़ा अपने मुजाहदात कर कर के जनाब एक तस्बीहात कर कर के शुरू में मंज़िलां तय कर कर के इमामुल अंबिया दी बारगाह में इमामुल अंबिया फरमाते हैं जो अली मुर्तज़ा दी बारगाह दे अंदर अली मुर्तज़ा दे कोल पहुंच गए अली मुर्तज़ा
बना दो वली बनने काबल नहीं तो फिर वापस दौड़ो फिर उन्होंने लग हजरत